Hello everybody and welcome back to my channel. My name is Dr. Sarthak Kaushik and I am back again with another video. This video is part of a podcast which I'll be putting upon Spotify, Amazon Music and Apple Podcasts. So I've recorded an interview with my junior Dr. Kawal who scored a very good rank in NEET PG this year, and we talked about a lot of things that will be very helpful for people who are going to give DPG next year or INSCT in November. So I think all of you should hear what he has to say, and just keep supporting me like this. And don't forget to like, share, and subscribe to this video. And don't forget to follow me on Instagram and YouTube. Everything else is in the description. So take care, and here's the video for you. Hello, Kaval, and welcome to the episode. First of all, heartiest congratulations to you. You've got Thank you such a so much, good sir. rank in NEET PG. Please tell everyone कि तेरी कितनी rank आई and just tell something about yourself. Hello everyone. I am Dr. Kawaljeet Singh from Baba Saheb Ambedkar Medical College 2018 batch, and I got AIR 100 in this NEET PG 2024. And thank you, sir, for inviting me. ठीक है, so let's just get the straightforward questions first. तो मतलब पहली बात तो how was the paper? मतलब what were your first thoughts, and अब तो result आ गया है, सब कुछ हो गया, तो in what are your thoughts in hindsight? Well, सर जब मैंने टेस्ट दिया था तो मतलब बॉल्स सा लग रहा था. Definitely it was not typical NEET paper. Like it was just like INICT paper with long stem questions and more of image based question, to be honest. But yeah, I felt कि shift 1 मतलब मेरा shift 1 था तो definitely it was easier compared to shift 2, but overall थोड़ा ballsy paper था this year. मतलब तेरे को क्या लगता है कि बिगेस्ट चैलेंज क्या था लोगों के लिए, मतलब कि पेपर सबको डिफिकल्ट लग रहा था? So first one was the again most of the questions were long stem, like 4 5 कहते हैं line से question थे. Then definitely because this year the first time we have sets like 5 sets of 40 question each and 42 minutes. Then because of those long stem questions and tough questions, हमारे sets के end में हमारे पास generally 5 to 10 minutes बचते थे, कई बार कम भी. There were few sets में मेरे पास 10 to 15 minutes ही बचे थे, बट मेरे खुद के कई सेट्स ऐसे थे जिसमें मेरे पास 5 minutes बचे थे. तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट वाज द मेन इशू and the difficulty. अच्छा, तो ठीक है, तो मतलब फर्स्ट तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, बिकॉज यू क्लियर्ड इट along with your internship? Well, so मेरी internship, like as you know, हमारे कॉलेज में definitely comparatively easy है compared to other colleges. But yeah, Yes. overall मेरी internship बहुत अच्छी थी and overall PGs या workload वगैरह easy था. मतलब 12 hours से ज़्यादा तो हमारी कभी ड्यूटीज लगी नहीं, तो definitely overall working hours हमारे अच्छे थे and easy, हम टाइम मिल जाता था and ऑफ मिल जाते थे, तो कोई इशू नहीं था. तो that's why internship में आराम से पढ़ाई भी हुई. मतलब अभी तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंटर्न्स के लिए, क्योंकि पेपर का इंटर्नशिप के बाद काफ़ी डिले हो गया था. तो एक तरफ तो मतलब हमें तो हम तो क्योंकि पेपर नहीं दे रहे, तो बाहर से तो हमें लगता है कि एक तरीके से अच्छा है, इंटर्न्स को बेनिफिट होएगा. ऑब्वियसली थोड़ा ड्रॉपर्स के लिए एक ड्रॉबैक है क्योंकि उनको और ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है. लेकिन how did you deal with all of this changing dates and all the other stress related stuff? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पैटर्न चेंज हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे बता रहे हैं 2 सेट होएगा, फिर किसी के सेंटर्स भी बहुत दूर दूर आ रहे हैं, तो मतलब इट मस्ट हैव बीन स्ट्रेसफुल फॉर यू. तो कैसे तुमने डील किया उसके साथ? वेल सर, वैसे तो ये जो था लाइक जो पोस्टपोन हुआ बार बार, ये काफी लोगों के लिए उनके लिए अच्छा था जिन्होंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी थी. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट लेट इन देयर इंटर्नशिप एंड मे बी समटाइम्स आफ्टर इंटर्नशिप. बट फॉर मी, एज इन बिकॉज मैंने काफी सारा अपना सब्जेक्ट एंड बेसिकली सिलेबस कंप्लीट कर लिया था अप टिल जनवरी. बट देन पोस्टपोन होते होते आई कांट रीड माई नोट्स एंड रिवाइज नोट्स बार बार. लाइक यू कांट गेट मोर आउट ऑफ द सेम नोट्स. I have read, like literally I have read my notes 7 times to 8 times. So for that I have to like switch to some other notes ताकि कोई fresh perspective मिले, basically कुछ different पढ़ने को मिले. वरना like I was totally bored. So I joined, basically I gave GTs from PrepLadder, from DAMS also. So definitely मेरे लिए issue ये था कि मेरे को same चीज़ बार बार revise करने में issue आ रहा था, because
मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ आउटपुट. So in this time में what like how I use this time in improving my MCQ solving skills, because you can like get up to 150 question or 160 question just by knowledge, but you definitely need like some MCQ solving skill की okay how to smart guess करना कैसे है, rule out कैसे करने between two options. तो मैंने आपसे कार्तिक सर और सीनियर सर में बात करी कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ. तो डेफिनेटली मैंने बस मेनली एमसीक्यू सॉल्विंग में मैंने ये टाइम यूज करा. मैंने मल्टीपल जीटीज लाइक एवरी 3 to 4 डेज में मैंने एक जीटी दिया. अदर देन दैट तो मतलब रिवीजन में मेरे लिए डिफिकल्टी थी, बिकॉज अगेन सेम नोट्स यू कांट रीड लाइक 7-8 टाइम्स. एक टाइम के बाद तुम भी बोर हो जाओगे. मतलब इसमें तो मतलब मेरे को पता नहीं कि ज़्यादातर मतलब मेरी तो ये स्ट्रैटेजी नहीं थी, एंड आई एम श्योर कि और भी सारे लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो तो नहीं करते कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग जीटीज़ वगैरह दे. बट ठीक है, ये तो सिचुएशन भी तुम्हारे लिए यूनिक थी. पहले तो इतने डिलेज नहीं होते थे, पहले तो हमें इतना ही टाइम मिलता था कि एक फर्स्ट रीड हो जाए, उसके बाद आप 2 रिवीजन कर सकते हो और लास्ट के कुछ दिनों में एक थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो. तो इतना ही टाइम मिलता था. तो ठीक है, इट वाज स्लाइटली डिफ़िकल्ट, बट ठीक है, यू टुक अ डिफरेंट वे एंड इट टर्न्ड आउट टू बी गुड फॉर यू. तो मतलब मुझे याद है कि जब पेपर हुआ था, पेपर दे के तू बाहर आया था, तो आई रिमेंबर कि यू वर नॉट सेटिस्फाइड उस टाइम पे. तो मतलब क्या रीज़न था उसका? सर बिकॉज बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली बात है, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी. एक थे एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम्स में थे जनरली. जो इजी क्वेश्चंस है यू नो कि तुम वो करेक्ट करोगे. अकॉर्डिंग टू मी मैं उस पेपर में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन छोड़ सकता था अगर मेरे पास चांस होता. बट अगेन बिकॉज आई हैव टू लाइक माय एम वाज हायर, so but still I left 4 question in this paper. I left 2 question in INSCT, but I left 4 question in this NEET PG exam. So basically that was like, and one of the I have like मैंने सबसे easiest question paper का गलत करा है. Obviously बात है, you will say कि यार टॉपर है, फिर भी बोलेगा कि एक क्वेश्चन गलत हो गया. बट yes, मैंने एक क्वेश्चन जो बहुत इजी, जो मैं कभी बेसिकली सोते हुए भी गलत नहीं कर सकता, वो नीट पीजी में करके आया हूँ गलत. बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे थे लाइक फर्स्ट क्वेश्चन करा नहीं आता, सेकंड क्वेश्चन करा नहीं आता, 3-4 स्टेम ऐसे निकल के क्वेश्चंस के नहीं आते, देन यू आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स बेसिकली. ये तो होता ही है. तो मतलब व्हाट वाज योर मेन टेक अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम? मतलब अब देख, तेरे से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि तूने कैसे तैयारी करी, जूनियर्स पूछेंगे और भी तेरे बैच वाले लोग भी पूछेंगे. तो व्हाट इज़ योर मेन टेक अवे? क्योंकि अब तो देख, NB इज़ मूविंग फॉरवर्ड विद दिस पैटर्न. अब आई डोंट थिंक कि अपकमिंग टाइम के अंदर ये मॉर्निंग और रीडिंग सेट वाला इशू होएगा, क्योंकि मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि ये कर पाएंगे इसको आगे. इस बार थोड़ा अनॉमली था, बट आई थिंक पर ये जो सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है ये तो चलेगा आगे. प्लस एक अब इन्होंने काइंड ऑफ एक डिफ़िकल्टी लेवल का एक बार सेट कर दिया है. तो मतलब अब जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो व्हाट शुड दे कीप इन माइंड? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो कुछ आया ही नहीं है, तो प्रीवियस ईयर करने है कि नहीं करने. सर फर्स्ट पॉइंट तो मैं बोलूँगा लाइक फॉर विद रिस्पेक्ट टू सेट्स, बेसिकली सेट्स ऑब्वियसली बात है डिसएडवांटेज के साथ आता है कि यू कैन नॉट गो बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन. बट अगेन इसका एडवांटेज भी है कि ओके यू हैव 40 क्वेश्चंस, यू हैव टू करेक्ट एटलीस्ट 38. बेसिकली टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इजी होता है अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स व्हाट आई फेल्ट. एंड फॉर प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव सर आई थिंक कि जो शॉर्टकट जो आजकल मोस्ट ऑफ द किड्स करते हैं कि बेसिकली कंसाइज नोट्स की तरफ भागेंगे कि सिर्फ वो पढ़ेंगे. आई थिंक कि जो मेन परफॉर्मर्स होते हैं नीट पीजी वो जनरली वो होते हैं जो मैं थ्रू द एमबीबीएस पढ़ते डेफिनेटली, एंड मेन नोट्स एक बार ही करते जरूर है. दैट्स व्हाट आई. सो बेसिकली फॉर द एमसीक्यूज लाइक मेरे काफ़ी लाइक बैचमेट्स हैं, मेरे जूनियर्स पूछते हैं कि सर सिर्फ पीवाईक्यूज. अगेन मैं कभी सिर्फ पीवाईक्यूज को कभी भी प्रमोट नहीं करता, बिकॉज पीवाईक्यूज करने से 2 चीज़ें होती हैं. एक तो यू गेट द बायस, बिकॉज मोस्ट ऑफ them जो पीवाईक्यूज करते हैं उनको आंसर याद हो जाता है, ना उनको क्वेश्चन याद रहता है ना उनको एक्सप्लेनेशन याद होती है, उन्हें सिर्फ आंसर याद होता है. सो मैं कभी सिर्फ पीवाईक्यूज करने के लिए नहीं बोलता. एंड जो पीवाईटीज है, बिकॉज दिस अकॉर्डिंग टू मी ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक है. टू बी ऑनेस्ट एवरीथिंग इज पीवाईटी ऑलमोस्ट. लाइक यू नो कि न्यूरोलॉजी में आएगा ये चीज, यू नो कि सीपीआर आएगा, तो दिस इज नॉट पीवाईटी, दिस इज मस्ट नो टॉपिक. सो आई थिंक कि ओवरऑल एक बार सबको क्यू बैंक पूरा करना जरूर चाहिए.
एंड उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज टू बी ऑनेस्ट रिलेटिवली कम करे, मैंने 1 या 2 बार करे होंगे, बट मैंने लाइक क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बायस बनता था, तो आई विल सजेस्ट कि अगर कोई कर रहा है तो एक बार क्यूबैक जरूर करे, सिर्फ पीवाईक्यूज मत करे, अगर पीवाईक्यूज करे तो एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़े बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा बायस क्रिएट होता है, तो सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं होगा, यू इवेंचुअली हैव टू फोकस ऑन पीवाईक्यूज। वही एग्जैक्टली ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो आ रहे हैं। मतलब उसके अंदर सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर एक क्वेश्चन आ रहा है इस बारी, मतलब लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन आया सपोज वॉन गिग्स डिजीज़ पे ही आया, तो नेक्स्ट टाइम वॉन गिग्स डिजीज़ पे नहीं आएगा यार। और वॉन गिग्स डिजीज़ प्रीवियस ईयर टॉपिक नहीं है, प्रीवियस ईयर टॉपिक है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइसोसोमल स्टेटोस डिसऑर्डर, तो वो पूरा पढ़ना है। और उसमें उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं कि भाई मतलब कौन से एंजाइम में डेफिशिएंसी है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, कब प्रेजेंट कर रहा है, इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है, ये सब फिर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि एक थोड़ा सा लाइन चेंज कर दिया और वो आंसर चेंज हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग नहीं पढ़ते उसका एक्सप्लेनेशन और सिर्फ वो क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं और फिर बस उसको आँख बंद करके मार्क कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब तेरे को क्या लगता है कि इस पेपर में थे ऐसे जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे? सर टू बी ऑनेस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम तो मैंने टू बी ऑनेस्ट तो रिकॉल्स नहीं देखे हैं, तो मेरे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो याद ही नहीं है, बट अगेन ड्यूरिंग द एग्जाम तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा कभी स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये पीवाईक्यू टॉपिक है, फिर मैंने ये क्वेश्चन पहले कभी कर रखा है, मुझे ऐसा पर्सनली कोई क्वेश्चन लगा। ऑब्वियसली जो इजी क्वेश्चंस होते हैं लाइक ईविंग सार्कोमा या ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑब्वियसली बात है लाइक ये पीवाईक्यूज भी है, पीवाईटीज भी है, बट अदर देन दैट मेरे को कुछ पर्सनली उस टाइम अटेम्प्ट करते टाइम मेरे को फील नहीं हुआ बिकॉज मैंने कभी बायस आने ही नहीं दिया। मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करता था कंपेयर टू द ऑप्शंस, बिकॉज जैसे कि अब रिफ्लेक्स ऐप है उसमें पुअर एक्सप्लेनेशन है एंड बच्चे सिर्फ बेसिकली आंसर्स पढ़ के मूव करते हैं। एंड आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स लाइक मैनी, बिकॉज मैं जनरली ग्रुप्स में पढ़ता हूँ, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा कि वो दे जस्ट फोकस ऑन द आंसर, दे नो कि मेरे को ये आंसर है, कि वो आंसर है उनको ये नहीं पता, और कई बार वो रॉन्ग आंसर होता है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत करना बहुत इजी होता है और वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली स्कोर कम हो जाता है फिर उसकी वजह से, क्योंकि बाकी लोग वो ठीक कर रहे होते हैं यूजुअली, एग्जैक्टली जो हाई रैंकर्स होते हैं वो ठीक कर रहे होते हैं वो चीज़। एंड आई थिंक ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि अगर फर्स्ट सेट कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था तो उसके अंदर अगर आप इजी क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर रहे हो तो आपकी रैंक बहुत पीछे जा रही है। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट इसके लिए सर मैं जनरली बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ, लाइक आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना हार्ड क्वेश्चंस की तरफ दौड़ते हैं, सम रेयर सिंड्रोम्स, एंड जस्ट टू शो ऑफ लाइक कि अरे तुमने ये सिंड्रोम नहीं पढ़ा है, वो सिंड्रोम नहीं पढ़ा। मैं पर्सनली जो मैंने करा है, आई यूज्ड टू मेक कस्टम मॉड्यूल ऑफ 100 क्वेश्चन एंड सेट द डिफिकल्टी लेवल टू इजी, एंड मेरा गोल होता था कि उसमें एटलीस्ट 90%, जनरली मेरे 95 करेक्ट होते थे, बट मेरा गोल होता था कि 90 करेक्ट करने, बिकॉज आई कांट लाइक ये मेरे लिए पाप की तरह है, यू लाइक इस नहीं कर सकते तुम गलत। बेसिकली इजी क्वेश्चन सब, हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड होगा डेफिनेटली, इजी क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते, दैट्स व्हाई मैं इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा करता था। एंड जो इजी क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स होते थे और उनकी एक्सप्लेनेशन होती थी, क्वेश्चंस भी काइंड ऑफ उसी से ही आने होते मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उससे एक वो रिवीजन टूल की तरह वर्क करता था एंड प्रैक्टिस टूल की तरह वर्क करता था। काफ़ी अच्छी इंसाइट दिया तूने एंड वेरी गुड एडवाइस टू जूनियर्स आई वुड से। तो मतलब एक लास्ट चीज़ जो मैं टच करना चाहता हूँ अब, मतलब विच एवरीबडी इज़ डाइंग टू नो इज़ दैट कि तूने आखिरी के 7 से 10 दिन में क्या किया था। बिकॉज मेरे को पता है कि जब मैंने दिया था तो अगर जो मेरे लास्ट के 7 to 10 डेज़ थे उसके अंदर जिस तरीके की मेरी तैयारी थी, मे भी शायद उस वजह से ही मेरे को सीट मिली, क्योंकि वो उस टाइम के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, उस टाइम स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा हाई होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो फिर उस टाइम थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है और स्टेक्स भी ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था और क्या किया बेसिकली लास्ट के 7 से 10 दिनों में? सर एज इन हमारे सिनेरियो में तो बिकॉज मल्टीपल टाइम पोस्टपोन हुआ, हमने आईएनएससीटी पहले दिया, तो यू कैन से कि मैंने लास्ट 10 डेज बहुत बार जी लिया। हाँ, सो आईएनएससीटी से पहले मैंने 10 डेज पढ़ा, देन 23rd of June से पहले मैंने 10 डेज पढ़ा, देन 11th August से पहले 10 डेज पढ़ा। तो डेफिनेटली 11th August से जो पहले 10 डेज थे उसमें मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा,
टू बी ऑनेस्ट। मैंने ना क्वेश्चन ज्यादा करे ना वो करा, बस अपने आप को रिलैक्स रखा टू बी ऑनेस्ट। बट इन लास्ट 10 days बेसिकली आई हैव मेड माय अगेन जो आजकल छोटी कॉपी सब बोलते हैं और 20th नोटबुक मैंने वो बना रखी थी, विच इज काइंड ऑफ नॉट अ छोटी नोट, थोड़ी ज्यादा ही है, बट या उसके अंदर मेरे वो टॉपिक होते हैं जो लाइक हाई यील्ड, अगेन जनरली टेबल्स या फिर किसी भी दो ऑप्शन या किसी दो डिसीज के बीच में हाउ टू डिफरेंशिएट, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जनरली जैसे कि हमारा NS है, RL है, इन सब के बेसिकली क्या क्या उनके अंदर कंसंट्रेशन होती है सोडियम वगैरह की, तो ऐसे टॉपिक्स थे और उनको ही मेरा मोटिव होता है कि इनको लास्ट के 10 days में रिवाइज करना है। एंड लास्ट डे पे ऑलमोस्ट कुछ नहीं रिवाइज करना होता एक्सेप्ट लाइक मेरा जो वीकेस्ट बेसिकली PSM है, जैसे कि तो आई यूज्ड टू रिवाइज PSM ऑन द लास्ट डे एंड साइकेट्री कि यार ये मैं गलत नहीं करना चाहता, एंड इजी क्वेश्चंस आते जनरली इन टॉपिक्स से, तो मैंने लास्ट 10 days में अपनी छोटी कॉपी रिवाइज करी थी। छोटी कॉपी है, ज़्यादा लोग इतना भरोसा नहीं करते, बट मैंने भी सेम चीज़ ही करी थी। मैंने भी अपनी एक छोटी कॉपी बनाई थी, वो तो एक छोटी सी डायरी थी, तो एक्चुअली मेरी छोटी कॉपी छोटी ही थी। एंड मतलब एंड तक आते आते मतलब आखिरी का जब एक दिन बचा था, लास्ट डे जब था, तब भी मेरी कॉपी के आखिरी के कुछ 8-10 पेजेस बच गए थे, पर तब उस टाइम फिर मैं छोड़ दिया था कि भैया मेरे से और नहीं हो रहा। लेकिन आई थिंक कि वो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम एक बार पूरा सब कुछ गो थ्रू कर लेते हैं तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा, बट फिर एक लाइन पढ़ते हैं, फिर लगता है इसके नीचे वाली लाइन भी पढ़ ही लेता हूँ, कितना टाइम लगेगा। ऐसे करते करते है ना, फिर बहुत टाइम खिंच जाता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मुझे लगता है एक फ़ायदा बस यही होता है कि पता चल जाता है कि क्या चीज़ें छोटी कॉपी में जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं जाएंगी, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने भी सेम ही किया था, आखिरी के उसमें पढ़ा था। बट वॉट आई थिंक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि आखिरी के 7 से 10 दिन के अंदर अपना टेम्परामेंट एकदम कूल करना होता है, थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ता है। तो ये चीज़ें आई थिंक हैं, आई थिंक पीपल स्ट्रगल विद मोर एज़ कम्पेयर टू मेकिंग अ छोटी कॉपी। तो तूने स्ट्रेस के लिए क्या किया था? सर टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं आई लिसन टू म्यूजिक, मैं थ्रू आउट द ईयर मैं जब भी पढ़ता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आई लिसन टू म्यूजिक। लाइक मेरा म्यूजिक टाइम फॉर like just last 6 months is 35 to 40,000 minutes on Spotify. तो मैं most of the time music सुनता हूँ, and like last day पहले obviously बात है हम सबको थोड़ी anxiety होती है, तो I took propranolol. ठीक है भाई, this is not an advertisement to take propranolol without a prescription, ठीक है। but मैं generally थोड़ा relatively exam से पहले काम रहता हूँ, पढ़ना बंद कर देता हूँ, तो मुझे उतना generally exam anxiety नहीं होती during Yes. So I think you've told us a lot about your insights from the paper, and मतलब I was very happy to see your result कि college के अंदर you were the person who has actually led the charge, इतनी अच्छी रैंक लेकर आया तू, and actually I'm very proud of you. Thank you so much. Being your senior and as well as your friend, तो मतलब it'll be good to see you, and I'm sure कि you will do better as you move ahead in your residency also. So thank you so much for joining me, and it was great having you on the podcast. Thank you so much, sir, for inviting me. Thank you so much. Okay.